میں گھر کے دروازے میں گیا، اندر گیا تو ڈیوری میں ایک طرف ایک بہترین رینک پڑا ہوا تھا، اس میں جوتے پڑے ہوئے تھے گھر کے، اور کچھ جوتے ایسے تھے ٹیڑھے ہو گئے تھے، یعنی کئی سالوں سے عرصے سے اس کو پہنا بھی نہیں، استعمال بھی نہیں کیا۔ میں نے کہا یہ رزق ہے، اس کو کسی کو دے دیتے ہیں۔ ایک دنیا دار کے بہت بڑے کے گھر گیا، حضرت اس کمرے میں بھی تشریف لے جائیں، دعا فرمائے، پھونک مارتے ایسے، اس کمرے میں بھی، اس کمرے میں بھی۔ میں نے جب گھر کا نقشہ دیکھا، میں نے کہا اجازت تو ہو الماری کھول کے پھونک مار دوں؟ ہاں حضرت سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں مدینے آئی جاواں تے میں جائیں جاواں، سویرے جاواں مدینے، شام نو آواں، شام نو جاواں تیرے آواں، کہ خرچہ تیری ماں دے گی تینوں؟ میں نے آواں کہنے لگے سبحان اللہ حضرت اس میں ہی پھونک مار دیں۔ میں نے اس میں کھولا تو اس میں کپڑے کھڑے تھے، میں سوٹ گننا شروع ہوا، 1 2 3 4 5 6 45 تک گیا میں، ایک الماری میں سوٹ لٹکے ہوئے تھے ایسے۔ میں نے کہا کتنا عرصہ؟ جی اتنوں کو پہننے کا موقع ہی نہیں ملتا سوٹ۔ میں نے کہا بیڈ شیٹ بڑی ساری لے آؤ، بیڈ شیٹ بچھوا، جتنے میں نے کہا سوٹ نہیں پہنے ہوئے نا 3 4 5 استعمال کرتے، میں نے کہا ویسے بھی ڈیزائن پرانے ہو گئے ہیں، آپ کو نئے برانڈ نئے چیزیں ہیں حضرت، بس جیسے آپ فرمائیں حضرت۔ اب کہہ رہے تھے اب حضرت کی ٹون بدل گئی تھی، پہلے اور تھی، حضرت ادھر پھونک مار دیں، حضرت ادھر دعا فرما دیں، سبحان اللہ۔ میرے مرشد میرے گھر آئے ہیں، میرے گھر آئے ہیں، اس الماری میں بھی ادھر بھی، جب حضرت نے کہا نا کہ گھر سارا گھر سمیٹ، میں نے گٹھڑی میں ڈلوایا۔ میں نے کہا یہ کیا بڑا ہوا ہے؟ کہنے لگا حضرت یہ میرے جہیز کا بریف کیس ہے۔ ارے میں نے کہا پرانا ہے، اٹھاؤ اس کو، اس کے اندر کپڑے ڈالو۔ یہ میرے جہیز کا بریف کیس ہے۔ ارے میں نے پرانا ہو گیا، بڑا سالڈ بریف کیس تھا، چمڑے کا، لیدر کا، اس میں کپڑے ڈلوائے، کسی میں جوتے ڈلوائے، برتن ڈلوائے، بہت سارے ڈلوا کے میں نے کہا یہ اپنے ہاتھوں سے اپنے غریبوں کو دینا ہے، اب آپ کا حق نہیں اس کو کھولنے کا۔ اور مجھے پتا چلا کہ انہوں نے دیا۔ اور ایک بات بعد میں ملی پھر مجھے، کہنے لگے جی اس وقت تو آپ کی محبت میں ہم انکار نہیں کر سکتے تھے، اندر سے یوں ہو رہے تھے، پر اس کے بعد رب نے ہمارے گھر سے بیماری نکال دی، ہمارا گھر آدھا میڈیکل سٹور بنا ہوا تھا۔ نعمتوں سے خوشحالیاں آتی ہیں، نعمتوں سے برکتیں آتی ہیں، نعمتوں کی قدر دانی سے۔ رمضان میں اس اجتماعی ماحول میں رہتے رہتے پانی کی نعمت سے واسطہ پڑا، بجلی کی نعمت سے واسطہ پڑا، دسترخوان کی نعمت سے واسطہ پڑا، کھانے کی نعمت سے واسطہ پڑا، اور پھر یہاں یہ ایک مشق ہوئی پورا مہینہ، مہینے سے زیادہ کچھ 15 شعبان کو تشریف لائے، کوئی جو ہے پہلے رمضان کو، کوئی آخری عشرے کو، یہ ایک واسطہ پڑا پورے مشق کا، اور راتوں کو جاگنے کا واسطہ پڑا، اور پھر اپنے جذبے اور نیتوں پہ بار بار محنت کرنے کا، یہ ایک اللہ نے ایک ہمیں ایک وقت دے دیا، اب اس پہ کچھ کر، کچھ لے اور کچھ پا کے زندگی میں ایسا سبق لے کہ ہمیں زندگی بھر یہاں رمضان کی تربیت اور رمضان کا رنگنا ایسا ہو کہ زندگیاں شاد و آباد ہو جائیں، اور ایسا کچھ لے کے جائیں۔ اسے کہتے ہیں جھولیاں بھر کے جانا۔ یہ نہیں ہوتا کہ جھولیوں میں کوئی نوٹ ڈال دیں گے، جھولیاں بھر کے جانا اسے کہتے ہیں، کہ زندگی میں انقلاب آئے، سوچوں میں تبدیلیاں آئیں، اور کچھ فیصلے کر کے جائیں، کچھ جذبے لے کے جائیں، کچھ زندگی کا چلن اور کچھ زندگی کے راز و نیاز لے کے ہم یہاں سے جائیں۔ یہ ہے انقلاب، اور یہ ہے جھولیاں بھر کے جانا، یہ ہے جھولیاں بھر کے جانا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو یہ تینوں چیزیں عطا فرمائے، اور پوری امت کو عطا فرمائے، اور ساری انسانیت کو عطا فرمائے۔ اپنی زندگی میں ہر شخص کی یہ چاہت ہوتی ہے میں خوشحال رہوں، پھر جب خوشحالی مل جاتی ہے تو پھر ایک اگلا احساس ہوتا ہے کہ اپنی نسلوں کو بھی خوشحالی دینی چاہیے یا ملنی چاہیے۔
پھر نسلوں کی خوشحالی کا سوچتا ہے، پھر کچھ ہی عرصے کے بعد اپنے آپ کو بھول کے اپنی نسلوں کے لیے ہر لمحہ سوچتا ہے کہ میری نسلوں میں خوشحالی کیسے زندہ و تابندہ ہو جائے اور میری نسلیں کیسے خوشحال ہو جائیں۔ خاص طور پہ ماں کا دل تو ہے کہ ماں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، جو بھولنے والی ماں ہوتی ہے وہ اپنے آپ کو بھول جاتی ہے، پھر اپنا وجود، اپنا تن، اپنا من وہ اپنی نسلوں کو گھلا دیتی ہے۔ جو بیچاری نوکری کرے گی وہ اپنی نسلوں کو کیا وقت دے گی اور نسلوں کی کیا پرورش کرے گی؟ وہ تو نسلوں کا حق کسی اور کو دے رہی ہے، وہ وقت کہیں اور لگا رہی ہے، اور ویسے بھی عورت کے رزق میں برکت نہیں ہے۔ یہ ایک بہت ہی حقیقی بات ہے۔ تو نسلوں کی ترقی کے لیے انسان مسلسل سوچتا ہے، پھر اس کے لیے جائیداد، پھر مال، پھر چیزیں، پھر اسباب، پھر اس کے لیے وسائل، یہ ساری چیزیں جمع کرتا ہے۔ کچھ کم ہوتے ہیں جو جمع کرتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ طیب ہے یا طاہر ہے، حلال ہے یا حرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ بہت ہی زیادہ دولت ایک ایسی چیز ہے، مال ایک ایسا عجیب نظام ہے، اس میں بہت کچھ انجام کو بھول جاتے ہیں، حال کو دیکھتے ہیں، معال کو نہیں دیکھتے، حال کہتے ہیں موجودہ کو، معال کہتے ہیں انجام کو، اس کو بھول جاتے ہیں بہت کم۔ اور خوش قسمت ہوتے ہیں جو یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مال کیا میری نسلوں میں کام آئے گا یا نہیں آئے گا۔ میری نانیما کا جہاں گھر تھا ہے، وہاں ان کے ساتھ ہی پڑوس میں ایک گھر ہے، باپ نے بیٹیوں کو حصہ دیا، وہ زمین ابھی تک بھی ایک اپنی داستان اور کہانی رکھتی ہے کہ جو بھی اس زمین کی کاشت کرتا ہے، اس رقبے کی کاشت کرتا ہے، وہ بدحال ہو جاتا ہے، فقیر ہو جاتا ہے، معاشی طور پہ تنگ دست ہو جاتا ہے، مشکلات اور مسائل میں ایسا گھر جاتا ہے کہ بس زندگی اس کی مشکلات میں، مسائل میں بہت ہی زیادہ۔ جو شخص اسی زمین کو کاشت کرتا ہے، پہلے بیٹے کاشت کرتے تھے، پھر خود بدحال ہو گئے، پھر انہوں نے وہ زمین ٹھیکے میں دے دی، پھر جس نے لیا ٹھیکے پہ اس کا کچھ نہ بچا، پھر اس نے چھوڑی، مقروض ہو کے، پریشان ہو کے، پھر انہوں نے کسی اور کو دے دی۔ مطلب جو بھی چیز لیتا ہے، جو بھی مال لیتا ہے، وہی یعنی زمین، اس کا کچھ نہیں بچتا۔ مجھے یہ جو بتا رہے تھے وہ کہنے لگے کہ میں نے پتہ کیا کہ باپ نے جو زمین دی تھی اپنی بیٹی کو ورثے میں، حصے میں، تو باپ کیا کرتا تھا؟ تو پتہ چلا کہ بہت ہی غریب تھا، بہت سفید پوش تھا، بہت زیادہ۔ ماں روٹی باندھ کے اس میں چھوٹی سی گڑ کی ڈلی ڈال کے اس کو دے دیتی تھی، بستے میں رکھ دیتی تھی، اور وہ دوپہر کا کھانا کھاتا تھا اور شام کو پھر گھر آتا تھا، اور پھر گھر میں آ کے نمک مرچ جو بھی زندگی کا کھانا پینا تھا، جو میسر تھا، اسی کو کھا کے وہ پڑھتا رہا۔ پھر ایک جگہ نوکری لگ گئی، اور نوکری کسی ایسے محکمے میں لگی جو مشکوک تھا، اور جہاں مال مشکوک، اس نے اپنی غربت کی ساری حسرتیں پوری کی، اور پوری کرتے 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 پھر مال بنایا، پھر زمین بنائی۔ آج عالم یہ ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی بیٹے اور بیٹی کی زندگی میں، وہ مر گیا، اس کی بیٹی اور بیٹی کی کسی کی زندگی میں سکھ سکون نام کی چیز نہیں ہے، اور اس کا رقبہ، اس کی زمین جو شخص بھی لیتا ہے وہ شخص بدحال ہو جاتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے۔ خوشحالی ضروری ہے، یہ خوشحالی ایمان بچاتی ہے، یہ خوشحالی
نماز بچاتی ہے، تسبیح بچاتی ہے۔ یہ خوشحالی اللہ اس کے حبیب کا نام بچاتی ہے کہ بعض اوقات خوشحالی تنگ نہیں ہوتی، تنگ دستی ہوتی ہے تو انسان پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، اور غربت اور تنگ دستی کی آخری حد تک نکل کے بعض اوقات اس سے ایمان چھن لیتا ہے، چھن جاتا ہے اور وہ ایمان بیچ دیتا ہے۔ خوشحالی ضروری ہے، اسلام نے اس کو پسند کیا ہے، اور اللہ کے ہاں اس کی بہت قیمت ہے کہ اگر خوشحال ہے اور سخی ہے، خوشحال ہے اور حلال کا کمانے والا ہے، یہ دو چیزیں بہت کم نعمتوں، بہت کم لوگوں میں ہوتی ہیں۔ خوشحال ہو اور سخی ہو، یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ میں تیسری دفعہ پھر عرض کر رہا ہوں، خوشحال ہو اور سخی ہو، یہ بہت کم لوگوں میں چیز ہوتی ہے۔ یعنی مالدار ہو اور سخی ہو، اور مالدار ہو اور حلال کی راہوں کو دیکھنے والا ہو اور احتیاط سے چلنے والا ہو، یہ بھی بہت کم لوگوں میں یہ نہیں کہہ رہا کہیں نہیں ہے، رہے گی، رہی ہے، پہلے بھی تھی اب بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگی، لیکن بہت کم۔ ہماری زندگی میں خوشحالی آ جائے، سارا قرآن یہی کہ یہی لفظ، آج میں سن رہا تھا، 1.5 پارہ غالباً آپ نے پڑھا، میں سن رہا تھا اور میں ساری یہی الفاظ تھے جو چوٹیں لگا رہے تھے، کبھی جنت کو، کبھی جہنم کو، کبھی احکامات کو، کبھی زندگی کے اتار چڑھاؤ کو، کبھی پچھلا واقعات قوموں کے بیان ہو رہے۔ یہ سارا کچھ اس لیے بیان کیا کہ دنیا میں خوشحال ہو جاؤ، آخرت میں خوشحال ہو جاؤ، دنیا کی تنگ دستی سے بچ جاؤ، آخرت کی تنگ دستی سے بچ جاؤ۔ اور خوشحالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ارب پتی ہونا، کبھی یہ مراد نہ لیجئے گا۔ خوشحالی سے مراد زندگی کی ضروریات کا پورا ہو جانا، اور زندگی کی ضروریات کا ایسے انداز سے پورا ہو جانا کہ بندہ کو رب کسی کے ہاں بھکاری نہ بنائے، بندہ بھکاری نہ بنے، اسی انداز سے زندگی کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ پر اللہ غیب کے خزانوں سے میری ضرورتوں کی کفالت اور کفایت کرتا رہے، خوشحالی اس چیز کا نام ہے کہ غیب سے میری ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ رب نے اپنا نظام چلانا ہے، کسی کو مالدار، کسی کو تنگ دست، کسی کو سفید پوش، کسی کو چھوٹا، کسی کو بڑا، رب نے سارا کا سارا نظام چلانا ہے۔ فیصلہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو غریب رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو درمیانے درجے میں رکھنا ہے، فیصلہ ہوتا ہے اس کو مالدار رکھنا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں۔ لیکن میں جو بات عرض کر رہا ہوں وہ مالداری کی نہیں، خوشحالی کی عرض کر رہا ہوں۔ خوشحالی کا مفہوم یہ ہے کہ جس حال میں ہو خوش ہو۔ اب اس لفظ سے ہی خود پتہ کر لیں، خوش حالی، جس حال میں ہو خوش ہو، مطمئن ہو، خوش ہو، مطمئن ہو کہ مولا تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے، میں مطمئن ہوں، میرے پاس بڑی سواری نہیں، بڑا گھر نہیں، زندگی کا بہت زیادہ لباس نہیں، مجھے ہاتھ ملانے والے، سلام کرنے والے اور بہت زیادہ استقبال کرنے والے نہیں، تو ٹھیک ہے، اگر مجھے ہو جاتا تو پتہ نہیں میں بدک جاتا، میں پھسل جاتا اور میں اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتا۔ خوشحالی مطلوب ہے، اور یاد رکھیے گا خوشحالی کا تعلق 3 چیزوں میں ہے، 3 چیزوں میں ہے۔ سب سے پہلی چیز ہماری نیت پہ ہے، جذبے پہ ہے۔ خوشحالی کا تعلق نیت اور جذبے پہ ہے۔ سب سے زیادہ جو خوشحال زندگی میں نظر آئے گا، 2 راستوں سے نظر آئے گا، جس کو رب نے زندگی میں خوشحال رکھنا ہے، اس کی نیت اور جذبے کا اس میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ میری نیت کیا ہے، میں جذبہ کیا ہے، اور میں کس جذبے کو لے کے چل رہا ہوں۔ اس کی جیب سے نکلوانا مطلوب ہے دھوکے کے ذریعے، جھوٹ کے ذریعے، فریب کے ذریعے، مکان بنا لیا، گاڑیاں بنا لی، بنگلے بنا لیے، کیا میری نسلیں ان چیزوں سے خوشحال رہیں گی، یا میری نسلوں میں فاقے، غربت، تنگ دستیاں، ذلتیں اور مانگنا آ جائے گا؟ ایک سوال ہے۔ کتنے لوگ آپ کی نظروں میں ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے
یہ بہت زیادہ مالدار تھے، لیکن بس یوں مرتے ہی ان کی اولاد یا پھر تیسری نسل، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے، اکثر تیسری نسل تک مال رہتا ہے، چوتھی نسل تو اکثر فارغ ہو جاتی ہے، بہت کم ہے جو چوتھی نسل تک مال رہے۔ میں یہ ایک گورے کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے عجیب بات لکھی تھی، یہی کہ تیسری نسل تک مال اکثر نہیں رہتا، اسباب جائیداد اکثر رہتے ہیں بہت کم، چوتھی نسل تک بہت کم، اور پانچویں چھٹی نسل بہت کم۔ ورنہ مکان ہے جی اس لیے بیچ رہے ہیں، سب کے حصے دینے ہیں، زمین ہے حصے کر دیے، اس نے بیچ دی، اس نے ختم کر دی، اس نے جوئے میں ہار گیا، وہ نشے میں کھا گیا، وہ قرضوں میں چلا گیا، اس نے بیچ کے کوئی بزنس کیا اور بزنس میں گھاٹا آ گیا۔ جس طرح یہ بہت کم ہوتا ہے، اس طرح نوکری کے بعد جو پینشن میں رقم ملتی ہے وہ بھی بہت کم لوگوں میں بچتی ہے۔ یہ بھی بات کبھی سوچئے گا، نوکری کے بعد جو یکمشت رقم ملتی ہے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ، وہ جو اسے کیا کہتے ہیں، گریجویٹی، بہت کم لوگوں میں بچتی ہے۔ اس کو بھی سوچئے گا کیوں؟ میں نے اس کو بہت سوچا اور میں کسی نتیجے پہ پہنچا ہوں۔ مالدار بننا ضروری نہیں، خوشحال بننا ضروری ہے۔ مالدار بننا ضروری نہیں، خوشحال ہوں، بس اس حال میں ہوں کہ اگر جس حال میں ہوں میں خوش ہوں اور مطمئن ہوں، اور اللہ میری غیب سے ضرورتیں پوری کرتا چلا جائے، اور غیب کا نظام میرے ساتھ میرا رب موافق کرتا چلا جائے۔ مالدار بننا ضروری نہیں ہے، اور نہ ہر بندہ مالدار بن سکتا ہے۔ ہاں، خوشحالی بہت ضروری ہے۔ تو خوشحالی کا پہلا تعلق نیتوں کے ساتھ ہے۔ میری نیت کیا ہے؟ میری نیت اس کی جیب میں ہے، میری نیت اس کی جیب میں ہے، اس کے خزانوں میں ہے، اس کی چیزوں میں ہے۔ جو چیز تو لوگوں کی جیب سے نکلوا وہ تیری جیب میں رہ نہیں سکتے، اور جو چیز تو اللہ کے خزانوں سے لے وہ تیری جیب سے جا نہیں سکتے۔ آج ایک چھوٹا سا لفظ یاد رکھیے گا، دنیا میں فیصلے صفات پہ ہوں گے، آخرت پہ فیصلہ ایمان پہ ہوگا۔ اس کو پھر سنیں اور سوچیں، دنیا میں فیصلے کس پہ ہوں گے؟ صفات پہ۔ وہ صفات انگریز کی ہوں، یہودی کی ہوں، عیسائی کی ہوں، مسلمان کی ہوں، وہ صفات کافر کی ہوں، ملحد کی ہوں، وہ صفات زندیق کی ہوں، اور وہ صفات بد شکل کی ہوں یا خود شکل کی ہوں، دنیا میں فیصلے صفات پہ ہوں گے۔ انسان کے اندر جو صفات ہیں اور اللہ جل شانہ نے جن کا احکامات دی ہیں، وہ صفات انصاف کے نام پہ ہیں، عدالت کے نام پہ ہیں، عدل کے نام پہ ہیں، احسان کے نام پہ ہیں، حلال کے نام پہ ہیں، اچھی نیت اچھے جذبے کے نام پہ۔ دنیا پہ فیصلے ہمیشہ صفات پہ ہوں گے، آخرت پہ فیصلہ کس پہ ہوگا؟ وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج کے دن وہ جو ایمان نہیں لائے تھے ذرا علیحدہ ہو جائیں۔ اس لیے یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، دنیا میں صفات پہ فیصلے ہوں گے اور آخرت میں ایمان پہ فیصلے ہوں گے۔ پکی بات ہے، جس کا نیت اور جذبہ ہے رب اس کی نسلوں کو پالے گا، کھلائے گا، پلائے گا، عطا فرمائے گا، غیبی نظام اس کے موافق کر دے گا۔ نیتوں پہ اثر، نیتوں کا اثر زندگیوں پہ ہوتا ہے، نیتوں کا اثر زندگیوں پہ ہے۔ میرا جذبہ یہ ہے کہ لوگ میری تقریر سنیں اور واہ واہ کریں، اور میں کیمرے میں دیکھا جاؤں، اور پوری دنیا میری باتوں کو سنے، پوری دنیا کو نفع ہو جائے گا، پر میری ذات کو نفع نہ ہوا تو کیا ہوا؟ زمین بدلی زمان بدلے، مکی بدلی مکان بدلے، نہ تو بدلا نہ میں بدلا، تو پھر بدلا تو کیا بدلا؟ ہماری زندگی میں نیتوں کا اثر ہے۔
ایک صاحب کہتے ہیں کہ میں نے سفر میں جا رہا تھا تو ہم کچھ آدمی تھے، ہمارا قافلہ تھا، تو ہمیں بھوک لگی. تو ہم جب بھوک لگی تو بھوک پہ ہم نے ایک بستی میں دیکھی، تو بستی میں پہنچے. تو جب بستی میں پہنچے تو ہم نے کہا ہمیں کوئی گھر بتاؤ جو سخی کا گھر ہو، مہمان کو آئے کو کھانا کھلائے. ہم پردیسی مہمان ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں کھانا کھلا دے. انہوں نے کہا فلاں آدمی ہے، بہت سخی ہے. رات کا وقت تھا، رات اچھی خاصی بیت گئی تھی. ہم اس کے گھر گئے، اسے آواز دی، وہ اپنے خیمے سے نکلا. ہم نے کہا ہاں ہاں مرحبا مرحبا. ایک خیمہ ہمیں دیا، اس میں بستر لگوایا، لٹوایا. کہنے لگا بس تھوڑی ہی دیر میں آپ کا کھانا تیار کرتا ہوں، آپ تسلی کیجیے. اور کہنے لگے بس تھوڑی ہی دیر ہوئی اور کلیجی بھنی ہوئی ہمارے پاس آئی، بھنی ہوئی کلیجی. ہم بھنی کلیجی کھا رہے تھے اور کہہ رہے تھے واہ کیا کمال ہے، تازہ تازہ کلیجی ہے اور بھنی گئی ہے، اور ایسا مزہ، ایسا ذائقہ. اور ہوتی تو مزہ اور ہوتا، پر تھوڑی دیر میں اور تشتری آ گئی. ہم نے وہ کھائی، پھر اور آ گئے. ہم یہ کہہ رہے تھے اور واہ واہ مزہ آ رہا، آج تو پتہ نہیں ہم کہے جا رہے آئی جا رہی، ایسا مزہ. اور پھر ہم نے کہا، ایک نے کہا بس میری بس ہو گئی، دوسرے نے کہا میری بس ہو گئی، تیسرے. تھوڑی دیر کے بعد تشتری ایک آئی، پھر بند ہو گئی. اور اس نے ہمیں سلا دیا کہ آپ آرام کریں، آپ تھکے ہوئے ہیں، صبح آپ کے ناشتے کا ہم ترتیب بنائیں گے. کہنے لگے صبح ہم اٹھے تو دیکھا کہ 70 سے زیادہ بکریاں جو ہیں وہ ذبح ہوئی پڑی تھیں، لائن لگی ہوئی تھی. بکری کو یوں ذبح کرتا، ذبح کرنے کے بعد پیٹ چاک کرتا، اس میں سے کلیجے نکالتا اور اس کو بھون کے دیتا جاتا تھا. اور خیمے کے ساتھ غلام چھپا ہوا تھا جو بتا رہا تھا کہ ابھی بھوک ہے، ابھی بھوک ہے، ابھی بھوک ہے. اور لیکن ہم نے اس سے بڑا سخی نہیں دیکھا. آپ کو پتا ہے ایک سخی نے میرے آقا مدینے والی کی دعوت کی تھی، 100 اونٹوں کو ذبح کر کے اس کا بھیجا پکایا تھا. مغز 100 اونٹوں کو ذبح کیا تھا آقا کی خاطر. کی نہ کی تجار نے ایک یار واسطے، آقا کی خاطر 100 اونٹوں کو ذبح کیا، اس کا بھیجا نکالا، اس کا مغز پکایا. پھر آقا کے فرمایا آقا میری دعوت قبول فرمائیں، اور آقا نے دعوت قبول فرمائی. پتا چلا کہ اس دعوت کے پیچھے 100 اونٹوں کی قربانی ہو گئی ہے. قربان آپ کی ذات پہ 100 اونٹ کیا ساری زندگی. تو کہنے لگے ہم نے پوچھا اتنا بڑا سخی، لائن لگی ہوئی ہے بکریوں کی، لائن لگی ہوئی ہے کہ ذبح کیا، کلیجی نکالی اور بھون اور گیا. اچانک گئے، کوئی پروگرام نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. ہم نے کہا کہ سخی کے پاس کچھ دیر بیٹھنا چاہیے. تو ہم نے اس سے بات کی تو اس سے پوچھا کہ زندگی تیری؟ کہنے لگا میں ایک چرواہا تھا، کسی کی بکریاں چراتا تھا. بس میں نے زندگی میں پہلے دن میں یہی خواہش طلب رکھی کہ میں نے کسی کی خیانت نہیں کرنی، اپنے جذبے اور نیت کو ٹھیک کرنا ہے. میں اس کی بکریوں کی خدمت کرتا تھا اور میری نیت کی وجہ سے، اور بکریاں جو ہیں وہ پھلی پھولی، ان کی خدمت نیت سے کرتا تھا، ان کی پرچھاؤں نیت سے دیتا تھا. رب کا نظام دیکھیں کہ ایک دفعہ اس نے مجھے نکال دیا، میری بات میں ناراض ہو گیا اور اس نے کسی اور کو کہہ دیا کہ تو چلا جا. چلتے چلتے اسے پتہ نہیں مجھ پہ کس چیز ترس آیا، ایک بکری مجھے دے دی. کہنے لگے یہ خالی نہ جا، یہ لیتا جا. میں نے بکری پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا تو میری نیتوں کو جانتا ہے، میں نے یہاں سے کبھی نہ جانے کا فیصلہ کیا تھا، قیامت تک موت تک اس کی خدمت کا فیصلہ کیا تھا. اس نے مجھے نکال دیا، اب میں نہیں جاننا چاہتا، میں نے بہت رہنے کی کوشش کی ہے. چلتے چلتے مجھے بکری دی ہے،
अब मौला मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मुझे इस बकरी में बरकत दे दे। हाय हाय मौला, अब मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मुझे इस बकरी में बरकत दे दे। और कहा कि उस बकरी में जो बरकत हुई, थोड़े ही अरसे में जब मिलने पे आता है और जब वो देने पे आता है तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। थोड़े ही अरसे में मेरी बकरियां सैकड़ों से हजारों हो गई, फिर ऊँटनियां हो गई, फिर गायें हो गई, फिर मेरे पास दौलत, नेमतें, चीजें ऐसे छांव करने लगी मेरे सच्चे जज्बे और सच्ची नीयत की वजह से। और फिर मैंने सोचा कि मैं मेहमानों को खिलाऊंगा और पिलाऊंगा मेहमानों को। अब मैं ऊपर आया तो खिदमत वाले परेशान खड़े थे, जी रात 27 है, कल मजमा आएगा तो चाय तो ना पिलाए ना। मैंने कहा क्यों? उन्हें जी एक बंदा जो है वो बेचारे परेशान थे, जबकि क्योंकि एक बंदा 4 से 5 प्यालियां पी जाता है, वो दूसरों का ख्याल नहीं रखता। तो उन्होंने कहा जी हम चाय नहीं पिला सकते। मैंने कहा मैं मजमे की मिन्नत करूंगा कि मेजबान है आप सारे, कल 27 में जो चंद लोग आएंगे उनका ख्याल रखें कि हर बंदा 4 से 5 प्यालियां पीता जाता है, दूसरों का ख्याल नहीं करता। कि हम चाय नहीं पिला सकते मजमे को। मैंने कहा नहीं, आप चाय पिलाएं। मजमे की मिन्नत करूंगा, दरखास्त करूंगा। मैं नियत में बात कर रहा हूं, मेरी जात का काम हो जाए और मेरा काम पूरा हो जाए। चरवाहा तो ये कहता। आज मैं भाई से बात कर रहा था, कहने लगा तूफान आया, आंधी आई, आम सारे गिर गए बागों के, और वही दरख्त टूट गए, ये नुकसान हो गया। कहने लगे वो जो आमों के ठेकेदार थे बेखर, वो आए मेरे पास तो कहने लगे वो जैसे करते थे मैं वैसे कर देता था जी, इतना नुकसान हो गया, आपसे इतने लाख में तय हुआ था बाग, इतने में हुआ था, अब तो इतना नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, इतने में है, कोई बात नहीं, मिलजुल के हम, ये कुदरत का निजाम है, ये नुकसान हम आपस में बांट लेंगे, ये कुदरत का निजाम है, हो जाता है। लेकिन मैं बकरियां चराते फिर बकरियां ये हो गई, और मैंने तय किया मौला तूने ही मुझे दिया है और तेरी रहमत है, मैं इंशाअल्लाह तेरे मेहमानों को खिलाऊंगा। मेरी नीयत हमेशा खिलाने की रही, खाने की नहीं रही, जो उसने राज बयान किया अपनी दौलत का। हाय हाय। एक बुजुर्ग फरमाते हैं मैंने 4 लाख हदीसें जमा की और 4 लाख हदीसों का 4 हदीसों में निचोड़ किया, और उसमें सबसे पहली हदीस यही थी इन्नमल अमालु बिन्नियात। मेरा जज्बा हमेशा खिलाने का रहा। एक है 5 प्यालियां मैं पी जाऊं, एक है नहीं। मेरा जज्बा हमेशा खिलाने का रहा, खाने का नहीं रहा बस। और मैं, इसने एक बकरी उसने मुझे दी थी, चलते चलते साल हर साल खिदमत की, मैं उसका खातिम था। आका को हक है निकाल दे, ठीक है, मेरी किसी बात से नागवारी उसको हुई होगी, उसका आका को हक है। बस चलते उसने बकरी दे दी, और मैंने बकरी पे हाथ रख के मौला से बात कर ली कि सखी अब इसमें बरकत दे दे, और सखी ने उसमें बरकत दी। और आप जैसे मेरे पास मेहमान आते हैं और मैं ऐसे गोश्त और बकरियां ज़बह कर देता हूं, और जितनों पे छुरी फेरता हूं रब मुझे हर कतरे के बदले फिर और बकरियां दे देता है। कि मैंने नियत ये की है खाने की या खिलाने की। हाँ, नियतों का जिंदगी पे असर है। ये शख्स जा रहा था, पानी के किनारे सेब तैरता हुआ आ रहा, भूख लगी हुई थी, उसने उठा के सेब खा लिया, बड़ा लजीज सेब था। फिर ख्याल आया
पता नहीं किसका सेब था, बगैर इजाजत के मैंने सेब खा लिया, बगैर इजाजत के मैंने सेब खा लिया, पता नहीं किसका सेब था। अब उस पानी की तरफ चलना शुरू कर दिया, चलते 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 जब गया तो एक शख्स का बाग था और उसने पानी का निजाम हो रहा था, पानी दे रहा था, अपने बाग की खिदमत कर रहा था। तो उसे कहने लगा जी मुझसे गलती हो गई, अब माफी मांगने आया हूँ, आप मालिक हैं? उन्हें जी मैं मालिक हूँ, मैंने आपका एक सेब खाया है। कैसे खाया है? उन्होंने कहा दरख्त में एक तैरता हुआ, पानी में तैरता हुआ सेब आ रहा था इस नदी के किनारे, बाहो इस तरफ था, मैंने सेब उठाया, बड़ा तरोताजा सेब था और मैंने वह सेब खा लिया। और फिर ख्याल हुआ कि सेब तो मैंने किसी और का था, मेरी नीयत उस वक्त सोचा ही नहीं मैंने। अब मैं पानी की तरफ बढ़ता बढ़ता आ रहा हूं और मुझे माफ कर दे। उसने मैं माफ नहीं करता। इसने बहुत मिन्नत की कि मुझे माफ कर दे, मैंने आपका हक खाया है और आपकी बगैर इजाजत के इस्तेमाल किए हैं, बगैर इजाजत के किसी का जूता पहन लिया, किसी का बैग उठा लिया, किसी की चादर उठा ली, किसी का कपड़ा उठा लिया, बगैर इजाजत के। तौलिया खड़ा था उससे मुंह साफ कर लिया कि मैं बगैर इजाजत के मैंने इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा नहीं। जब ज्यादा इसरार किया कि एक शर्त मैं माफ करूंगा, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथों से लूली है, पांव से लंगड़ी है और जुबान से गूंगी है, उससे शादी करनी पड़ेगी। मेरी बेटी बैठी है, उसने कहा तैयार हूं, अगर इसमें माफी मिलती है तो मैं तैयार हूं। आपकी बेटी से इस लूली लंगड़ी अंधी गूंगी बहरी, मैं इससे बात इससे शादी करूंगा, फिर आप मुझे माफ कर देंगे? क्या? नहीं, माफ कर दूंगा। निकाह का एहतमाम हुआ, कुछ अहबाब आए, बैठे, निकाह हो गया। जब निकाह में गया, बीवी से मुलाकात हुई, वो तो मलका हुस्न थी, तो ना अंधी थी, ना लोली थी, ना लंगड़ी थी, ना कानी थी, ना गुंगी थी, ना बहरी थी, कुछ भी ना था। हैरत से उसको देखने लगा कि आपके बाप ने तो मुझे ये कहा था। उसने कहा जो कहा सच कहा था। मैंने अपनी आंखों से आज तक गैर महरम को नहीं देखा, मैंने कानों से गैर महरम की बात नहीं सुनी, मैंने अपने इस पांव को आज तक घर से बाहर नहीं निकाला, मैंने अपने हाथों से गैर महरम को नहीं छुआ, मेरा जिस्म किसी गैर महरम की तरफ नहीं है। तो मैं आंखों में अंधी भी हूं, कानों से बहरी भी हूं, जुबान से गूंगी, किसी से बात ही नहीं की, और मेरा हाथ पांव सब लूले लंगड़े हैं। मेरे बाप ने तो सच कहा है, और मैं बाप की एक हूं, सारा बाग तेरा है। और फिर ससुर से मिला, कहने आपने क्या कहा था? कहने लगा बेटा मैंने तुझे सच कहा था, मैंने तेरी पेशानी पे देख लिया था कि जो एक सेब का इतना ख्याल करता है, जिसका जज्बा ना खाने का है, जिसकी नीयत के अंदर यह जज्बा है, मेरा दामाद यही हो सकता है, मैं उसी को दामाद बनाऊंगा। और मैं अल्लाह से बहुत मांगता था हमेशा कि मैंने इस बाग के हमेशा 3 हिस्से किए, एक हिस्सा अल्लाह को देता था, एक हिस्सा घर वालों पे खर्च करता था, और एक हिस्से से फिर इसकी मैं निगहदाश्त के लिए लगाता था। घर वालों पे खर्च करता था। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान वो है जो घर वालों पे हाथ खर्च करे, रिज़्क़ हलाल है, घर वालों पे खर्च करे। ये दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जिसका बीवी को देने में हाथ कांपे नहीं। बाज़ औक़ात मां को देने से हाथ खुला होता है और बीवी को देने से हाथ कांपता है। और बीवी भी वो दुनिया की खुशकिस्मत हो जो घर वाले की इस नेमत की कदरदानी करे। उसने कहा अपने मैं माल के 3 हिस्से करता हूं, एक हिस्सा अल्लाह को देता हूं, एक हिस्सा अपनी जात पे खर्च करता हूं, और एक हिस्सा फिर इस बाग पे खर्च करता हूं। मैंने अल्लाह से हमेशा मांगा था, मौला ये बाग है, बहुत बड़ा आलीशान बाग है, मुझे इस बाग में बस कोई वारिस चाहिए, और वारिस ऐसा चाहिए कि जिसमें अमानत हो, दयानत हो, जज्बा उसका सच्चा हो। मैं उससे सिफात मांगता था, और सिफात मांगते मांगते मैंने तो जवान को देखा,
तेरी पेशानी पे पढ़ा, तेरे अंदर वो सिफात महसूस की। मैंने कहा लो वो घड़ी आ गई है, वो वक्त आ गया जो मैंने मांगा था। अब इस बंदे को मैंने इसी पे माइल कर लेना। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब ठीक है। बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, जवान बेटी है, खुशी से रहो, सारा बाग तेरा है। तेरे इस सच्चे जज्बे और सच्ची नीयत की वजह से कि खाने का जज्बा नहीं, खिलाने का जज्बा है। मालदारी नीयतों से मिलती है। किसने कहा है डिग्रियों से मिलती है? किसने कहा है आला तालीम से मिलती है? किसने कहा है बड़ी बेहतरीन जॉब और नौकरियों से मिलती है? वक्ती माल अगर मिल जाता है, नस्लों में तो नहीं चल सकता, जिंदगी में चैन सुकून तो नहीं दे सकता, जिंदगी के अंदर पनपता तो नहीं, बहारें तो नहीं लाता, बरकतें तो नहीं लाता, खैरें तो नहीं लाता, आफियतें तो नहीं लाता। रमजान की डूबती शाम हमें पैगाम दे रही है कि खुशहाली मांगना अल्लाह से, खुशहाली। और खुशहाली 3 चीजों में रखी हुई है, खुशहाली 3 चीजों में। बादशाह शिकार खेलते खेलते कहीं दूर निकल गया, और जब दूर निकला तो अपने साथियों से बिछड़ गया। सख्त प्यास लगी, आगे देखा तो एक बाग था, उस बाग में चला गया। बाग के माली से कहा कि मुझे कुछ पिलाओ। उसने एक अनार तोड़ा और अनार को निचोड़ा तो उससे एक गिलास भर गया, कटोरा भर गया उसके जूस से। बादशाह हैरान, उसके जूस को बादशाह ने पिया, उसको जूस को बादशाह को पी के, और उसके दिल में ख्याल आया कि मेरी राजधानी और मेरी नगरी में एक बाग और उसका इतना समर, और मैंने उस पर टैक्स नहीं लगाया, इतना उसमें रस, इतना फल, इतना कुछ। तो बागबान से कहने लगा एक प्याला और, कटोरा और भी दे दो। उसने जब नचोड़ा तो एक नचोड़ा, दूसरा नचोड़ा, तीसरा नचोड़ा, कई 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 अनारों नचोड़नों के बाद उसमें से रस निकला। तो बादशाह ने कहा ये क्या हुआ? पहले तो नचोड़ते हुए एक पूरा प्याला भर गया था, अब नचोड़ते हुए ये क्या? उसे पता नहीं था ये बादशाह है। कहने लगे ये मेरा ख्याल है, गुमान है, वक्त के बादशाह की नीयत बदल गई है और नीयत खराब हो गई है। बस मेरा ख्याल है कि उसके खराब होते ही बरकत एक पल में ऐसे उठ गई है, बरकत एक पल में ऐसे खत्म हो गई है। वो तो जज्बा है कि ये बोटी अच्छी पड़ी है वो खा ले, ये रोटी अच्छी पड़ी है, कोई जला हुआ हिस्सा मैं खा लूं, क्या हर्ज? टुकड़े बचे हुए मैं खा लूं तो कौन सी नेमत है मेरे लिए। चाहे मुझे ना मिले कोई बात नहीं, मेरा गुजारा हो जाएगा, पानी पी लूंगा। ये तो एक जज्बे की बात है। जो शख्स भी पनपा है, जिस शख्स को भी मिला है, जिस शख्स की भी नस्लें पली हैं खुशहालियों में, कभी खाने के जज्बे पे नहीं पली, हमेशा खिलाने के जज्बे पे पली है। जज्बे की बात कर रहा हूं, रंगबाजी की बात नहीं कर रहा, सियासत की बात नहीं कर रहा, जज्बे के सच्चे जज्बे की बात कर रहा। हमेशा अंदर जज्बा है कि मौला मेरा खर्च हो जाए तो अपने खजानों से दे देगा, और अपनी हब हस्बे इस्तेताअत खर्च कर रहा और खिला रहा, और रब के खजानों से ले रहा, और रब के खजानों से मांग रहा, रब के खजानों का भिखारी बन रहा, हमेशा उसे मिला है। ये सबसे पहली नीयत है। 3 चीजें मैंने अर्ज की हैं, 3 चीजें। मैं पहली चीज अर्ज कर रहा हूं कि नीयत और जज्बा। मेरा जज्बा क्या है, मेरी नीयत क्या है। अमीन और मामून से किसी ने पूछा, 2 भाई थे हारून रशीद के। अमीन से पूछा और मामून से पूछा। अमीन से पूछा कि खिलाफत का हकदार तो तू ही है वालिद के बाद। उसने कहा जी अभी तो मेरे वालिद जिंदा है,
उसी बंदे ने मामून से पूछा कि खिलाफत का हकदार तो तू ही है। उसने कहा कैसी बात कर रहा है, तूने ये बात क्यों कही है? उसके गले का हार बन गया। मेरे वालिद को, इसका मतलब है तू चाहता मेरे वालिद मरे? तो मरेगा तो मैं खलीफा बनूंगा। तो मेरे वालिद के सारे में ये सोचा, क्यों सोचा तूने? और तूने क्यों कहा ये बात? तो मेरा भी मोहसिन नहीं, मेरे वालिद का भी मोहसिन नहीं, तो गद्दार है। वो वालिद का करीबी था, कहने लगा आज आप दोनों बेटों का इम्तिहान लेके आया हूं। क्या? कहने लगा अमीन को मैंने कहा खिलाफत का हकदार तू है, तो अमीन ने जवाब दिया अभी तो वालिद जिंदा है। मालूम हो उसके अंदर खिलाफत की तलब है। और ये बात मैं मामून से की, मामून तो मेरे गले बढ़ गया, छुड़ाओ हलाक, जान छुड़ाना मुश्किल होगी मुझे। तूने ये बात क्यों कही? कहा कि हारून कहने लगा अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जो सोचा था सही सोचा था। मेरी पहली नजर मामून पे थी, क्योंकि मामून के उठने और बैठने को मैं पहले दिन से देख रहा था। इसके अंदर जज्बा मेरे इक्तदार पे नहीं, मेरे चेहरे पे और मेरी ताबेदारी पे। इसका जज्बा ये नहीं है कि बाप मरे तो मुझे खिलाफत मिले, इक्तदार मिले। इसके हमेशा जज्बा यह है कि बाप को सुकून मिले और बाप को चैन मिले और बाप की ताबेदारी हो और बाप की खिदमत हो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इंतखाब यही है कि मेरे बाद मुझे मामून पे मेरी नजर है। मेरे दोस्तों, हम नौकरी करते हैं, हम जॉब करते हैं, हम जिम्मेदारा करते हैं, हम बिजनेस करते हैं, हम चौकीदारा करते हैं, हम मिलें और फैक्ट्रियां चलाते हैं, हम कोई काम करते हैं। हमारा जज्बा क्या है? हमारी नीयत क्या है? हम किस जज्बे के तहत चल रहे हैं? ये चीज यहां से लेके जानी है तस्बीह खाने से। एक महीने का मुजाहिदा करके आप चल रहे हैं, बल्कि 15 शाबान से अहबाब आए बैठे हैं यहां, और 15 शाबान से मुजाहिदा करके आप तस्बीह खाने में तशरीफ लाए हैं और चल रहे हैं। एक जिंदगियों के फैसले करके जाने हैं। कोई बात नहीं, माल थोड़ा आएगा, क्या हरज है? मुझे खुशहाली चाहिए, मालदारी नहीं चाहिए। खुशहाली चाहिए, मालदारी नहीं चाहिए। मुझे खुशहाली का पीछे ताल्लुक सबसे पहले मेरे जज्बे और मेरी नीयत पे है। मेरे जज्बे और मेरी नीयत पे है। और जब मेरा जज्बा और मेरी नीयत तंदुरुस्त होंगे, रब गैब के खजानों से मुझे और मेरी नस्लों को पाल के दिखाएगा। और रब गैब के खजाने से मुझे और मेरी नस्लों को मालदार करके भी दिखाएगा, खुशहाल करके भी दिखाएगा, और गैब से जरूरतें पूरी करके दिखाएगा। असल चीज मेरी नीयत और मेरा जज्बा है। मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर क्या है? एकदम अगस्त में 1947 में तकसीम का ऐलान हो गया। एकदम ऐलान हुआ। जो मुसलमान वहां था वो वहां का रह गया। दरमियान में जो है लकीर लग गई कि ये इसका नाम हिंदुस्तान है, इसका नाम पाकिस्तान है, और जो हिंदू वहां का था वो वहां का रह गया। वो हिंदू जो है उसने तार भेजा अपने एक दोस्त को कि मेरी बीवी जो है वो घर में अकेली है, औलाद नहीं है, तो तू एक मेहरबानी कर, मेरा जिगरी दोस्त है, वहां हिंदुओं का काफिला फला जगह इकट्ठा हो रहा, तू तांगे में बिठा के मेरी बीवी को वहां पहुंचा दे, तेरा एहसान होगा, सारी उम्र दोस्ती निभाई है। ये तार लेके घर पहुंचा और कह का भाभी जल्दी से तैयार हो जाए, जो सामान उठाना है उठाएं, अफरा तफरी है वरना हमला हो जाएगा, लोगों को कत्ल किया जा रहा, मकानों को आग लगाई जा रही, जाने जाय की जा रही, नुकसानात हो रहे। बीवी को तांगे पे बिठाया और तांगा चल पड़ा। चलते चलते तांगा किसी वीराने की तरफ चला। उसने इजहार भी किया,
उसी शहर के रहने वाली थी, जिंदगी वहीं से गुजरी थी, वहीं पली थी, वहीं जवान हुई थी, वहीं पैदा हुई थी। ये कहां जा रहा तांगा? उसने कहा लोग इसी तरफ हैं सारे बैठे हुए। आगे वीराने में पहुंच के उसने उसको गिरेबान से पकड़ा, बालों से पकड़ा, नीचे उतारा और अपनी दरिंदगी का इजहार किया। औरत ने बहुत ज्यादा उसके साथ एहतजाज किया, बचने की कोशिश की। तांगे वाला भी उसी साजिश में शामिल था कि उसको कहा तुझे भी पैसे दूंगा, कि मेरी देरीना नजर इसी पे है, मेरी नीयत इसी पे पुरानी खराब है और मैं इसको देखता रहता था, आज मौका है। उसके साथ करते करते उसके कपड़े फट गए। आखिरकार उसने एक आखिरी तदबीर निकाली, बड़े वास्ते दिए, बड़े वसीले दिए और बहुत ज्यादा उसको कहा अपने दोस्त की दोस्ती को देख, उसको देख। वो कुछ ना माना। उसकी नीयत, उसकी आंखों के सामने के जज्बे बदल गए थे। आखिर उसके गले में एक तावीज था, उसकी औलाद नहीं थी। उस तावीज को तोड़ के एक झटके में कहने लगे इस तावीज के अंदर तुम्हारी मुकद्दस कुरान किताब है और उसके हरूफ लिखे हुए हैं, आयतें लिखी हुई हैं और मुझे उन्होंने दिया था कि ये गले में डाल ले, तेरी औलाद होगी, तुझे इसका वास्ता है, मुझे छोड़ दे। पर उसकी आंखों में शीशे आ गए थे। उसने उसको मजीद पकड़ना चाहा तो थोड़ी देर के बाद उसकी गिरफ्त ढीली हो गई। वह अपने अज़ाइम पूरे ना कर सका और गिरा। तो वो हैरत से देखा, गिरा तो एक काला सांप अपना काम करके वो जा रहा था और थोड़ी देर में वो ठंडा हो गया और खत्म हो गया। और तांगे वाला थर थर कांप रहा था और माफिया मांग रहा था उसका अंजाम देख के कि मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। और उसने उसको अपनी चादर दी और मोहनी उसका नाम था। मोहनी ने अपनी चादर ओढ़ी और उसने उसी हालत में तांगे वाले ने उसे कैंप में पहुंचाया। जज्बों का असर जिंदगियों के साथ चलता है। तस्बीह खाने का पहला पैगाम मेरे लिए भी, आपके लिए भी, मैं अभी अपना सबक ताजा कर रहा हूं, याद कर रहा हूं। हमने अब सबसे पहले अपनी नीयतों पे नजर रखनी है, अपनी नीयतों पे। हर काम करने से पहले, हर सब्जेक्ट से पहले, हर अमल से पहले, हर सोच से पहले, हर कदम से पहले, हर खिदमत से पहले, हर दोस्ती से पहले। एक है खाने का जज्बा, एक है खिलाने का जज्बा, एक है खर्च करने का जज्बा, एक है खर्च कराने का जज्बा, एक है सारा कुछ हड़प कर जाने का जज्बा और एक है नहीं, दूसरों का हक भी इसमें शामिल है। चाहे वो जायदाद है, चाहे वो दस्तरखान है, चाहे वो बेटी का हक है, चाहे वो बहन का हक है, चाहे वो अपने भाईवाल, अपने शराकतदार का हक है, चाहे वो पड़ोसी है, चाहे वो दोस्त है। जिंदगी के हर मामले में इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल एहसान। जिंदगी में दो है सब्जेक्ट, बस दो ही रास्ते हैं, एक अदल और एहसान है और इस सब में नीयत का दखल है। हम अपनी नीयतों का सिला अपनी नस्लों के लिए छोड़ के जाएंगे, नस्लें खुशहाल होंगी, नस्लें खुशहाल होंगी, नस्लें खुशहाल होंगी। नस्लों में बीमारियां, अंधापन, कानापन, लूलापन, लंगड़ापन, अपाहज नहीं, नस्लें खुशहाल होंगी। और नस्लों की जरूरतें रब गैब के खजानों से पूरा करता चला जाएगा और नस्लों की जरूरतें गैब के खजानों से अल्लाह देता चला जाएगा। यह जज्बा यहां से मजबूत करके जाना है, इस सबक को यहां से सीख के जाना है। क्यों यहां ईमान साज माहौल है और हम जहां जाएंगे चंद दिनों के बाद रमजान के खत्म होने में, वहां ईमान सोज माहौल है, ईमान सोज, जहां हर तरफ एक मुआशरे की अफरा तफरी है, जहां हर तरफ यही चलन है और बंदा बेबस होके रह जाता है। ईमान साज माहौल में बहुत अरसा रह के एक ईमान की सतह बुलंद होती है, एक ईमान की सतह ऊंची होती है और एक ईमान सोज माहौल है। वहां जाके इंसान एक पल में परेशान, जो फैसले कर भी चुका होता है, अपने फैसले पे बदलने पे मजबूर हो जाता है। नहीं, अल्लाह से अभी से मनवा के जाएं। जज्बों के साथ बंदा चलता है। सारा जमाना हो जैसा भी हो, कीचड़ हो कोई हर्ज नहीं, फिसलन हो, लोग फिर फिसल रहे हो,
और मैं संभाल संभाल के कदम रखते आखिरकार उस कीचड़ को अबूर कर जाता हूं। संभाल संभाल के कदम रखते रखते। खुशहाली का पहला राज नीयत है। खुशहाली का पहला राज नीयत है। और इंसान हमेशा नीयतों से वक्त बुलंद होते हैं और नीयतों से जिंदगी में नाकामियों से बचता है और कामयाबियों में आता है और अपनी नस्लों के लिए खुशियां, खुशहालियां, खैरें और बरकतें छोड़ के जाता है। नस्लों के लिए खुशियां, खुशहालियां, खैरें और बरकतें छोड़ के जाता है नस्लों के लिए। वरना नस्लों के लिए तंगदस्तियां, फक्र, बीमारियां, गुर्बतें या नफ्सियाती अमराज या टेंशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या पागलपने और मुख्तलिफ मसाइल या आपस में मुकदमात और आपस में उलझाव और आपस में दस्तो गिरेबान, पर यही जिंदगी का चलन होता है। अगर जज्बे गलत हों और गलत जज्बों से कमाया हुआ माल है, गलत जज्बों से बनाई हुई जिंदगी है, गलत जज्बों से संवारा हुआ निजाम है, वो निजाम संवरता नहीं है, वो सदा बिगड़ता है, वो कभी बहार नहीं होती, वो हमेशा खिज़ां होती है। हम सदा नियतों की कमाई खाएंगे, हम सदा नियतों और जज्बों को लेकर चलेंगे और मौत के वक्त भी यही नियत काम आएगी। और मरने से पहले मेरे लिए और आपके लिए हमारी नियत ही हमारा साथ देंगे। खुशहाली के लिए, खुशहाली के लिए। और दूसरी चीज, खुशहाली के लिए अल्लाह के लिए भूखा रहना। रमजान में भूखे रहे, अब रमजान के अलावा भूखा रहने का फैसला करें। रमजान के अलावा, रमजान में तो सरकारी निजाम था ना सारा, ये सरकारी निजाम है, और रमजान के अलावा गैर सरकारी निजाम है सारा। अय्याम बीच के रोजे 3, खुशहाली में इसका बड़ा हाथ है, खुशहाली में इसका बड़ा हाथ है। 13, 14 और 15 हर महीने के रोजे, और रात को सारी रात खुले आसमान के नीचे सूरत फातिहा पढ़ना। खुला आसमान मयस्सर नहीं तो अपने घर के अंदर ही चलते हुए पढ़ना। चल नहीं सकते, मजबूर हैं, बीमार हैं, बैठ के पढ़ सकते हैं। खवातीन, मर्द बैठ के पढ़ सकते हैं। वैसे जो चलते हुए पढ़ना और नंगे आसमान के नीचे पढ़ना और नंगे सर पढ़ना। लेकिन अगर नहीं है तो जैसी हालत में है इस अमल को कर सकते हैं। सारी रात सूरत फातिहा पढ़ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, लिजाहे कल्बी के साथ, दर्द के साथ, सोच के साथ, सच्चे जज्बे के साथ, पूरे इखलास के साथ, पूरे एहतमाम के साथ सारी रात पढ़ना। खाने की जरूरत है, खा सकते हैं, पीने की जरूरत है, पी सकते हैं, वजू टूट गया है, वजू फिर कर सकते हैं। और यह भी कर सकते हैं कि 2 नफिल पढ़ लें और पहली रकात में सूरत फातिहा पढ़ते जाएं 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1000, और फिर एक दफा सूरत इखलास, 3 दफा सूरत इखलास मिला के, और फिर रुकू सजदा, फिर दूसरी रकात में सूरत फातिहा पढ़ते 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 पढ़ते, और खुला भी पढ़ सकते हैं। अय्याम बीज, इसके अंदर रब ने खुशहालियों के दरवाजे रखे हुए हैं, रिज़्क़ के दरवाजे रखे हैं, इज्जतों के दरवाजे रखे हैं, वुसअतों के दरवाजे रखे हैं, राहतों के दरवाजे खोले हैं अय्याम बीज में। पहली चीज नीयत है। ये मैंने पहले कदम पे मैंने नीयत को खोला है, और मेरे जी में था और मेरे पास नीयत के बारे में वाकयात आ रहे थे, आमद हो रही थी, लेकिन वक्त की कमी, मैंने फौरन दूसरे उन्वान को बयान कर रहा हूं। और दूसरा उन्वान है अय्याम बीज, कि जिंदगी में अय्याम बीज बहुत बहुत ज्यादा, क्यों? अल्लाह के लिए भूखा रहना, और अल्लाह के लिए रात को जागना, और अल्लाह की वो पसंदीदा सूरत को पढ़ना जो आपकी हर नमाज की हर रकत का लाजिमी हिस्सा है या नहीं है? पूरा कुरान उठा लें
पूरे कुरान को अल्लाह ने बयान नहीं किया कि हर नमाज की हर रकत में पढ़, जो कुरान पढ़, जहां से जो हिस्सा पढ़ मैं कबूल कर लूंगा। लेकिन मेरा अल्लाह कहता है कि तू नमाज शुरू कर, और नमाज शुरू करने से पहले तो कुल हवल्ला पढ़। अल्लाह कहता है नहीं, मैं तेरी नमाज कबूल नहीं करूंगा। नमाज शुरू करने से पहले सूरत फातिहा लाजिम है कि मौला मैं सूरत फातिहा छोटी सूरत है, मैं अल्लाह तुझसे ज्यादा इश्क करता हूं, मैं पहली रकात में पूरी सूरत बकरा पढ़ूंगा। अल्लाह कहता है कबूल नहीं है। मौला पहली रकात में पूरी सूरत आले इमरान पढ़ूंगा, ये तो 7 आयतों की सूरत है। सूरत बकरा वो 2.25 पारों की, वो सूरत आले इमरान इतनी बड़ी, मौला मैं वो पढ़ूंगा। अल्लाह कहता नहीं, वो तेरी चाहत है, मेरी चाहत नहीं है। मेरी चाहत 7 सूरतों वाली सूरत है, सैकड़ों 7 आयतों वाली सूरत है, सैकड़ों आयत वाली सूरत मेरी चाहत नहीं है, वो तेरी चाहत है। मेरी चाहत सूरत फातिहा है, मेरे रब की चाहत है। अय्याम 20 जो ज़कात देता है, जो ज़कात देता है वो न सखी है न बखील है। जो सदका देता है और झुकता देता है, झुकता दे देता है, रब उसको खजाने गैब से अता फरमाता है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जो ज़कात निकालता है और पूरी निकालता है और तोल के निकालता है। और एक बात बता दूं, औरतों के जेवर की ज़कात मर्द के जिम्मे नहीं है। वो दे दें, उनकी दे दें और बात है, औरत अपने जेवर की पूरी ज़कात दे, चाहे जेवर बेच के दे, मर्द के जिम्मे नहीं है। दुनिया का खुशकिस्मत इंसान है जो ज़कात पूरी निकालता है। दुनिया का बाबरकत इंसान है जो उशर पूरा निकालता है, अपनी जमीन का उशर पूरा निकालता है। ये वो चीजें हैं जो फराइज से हट के हैं, यानी अय्याम 20 फर्ज रोजे रख रहे, ये फराइज से हट के हैं। और अभी देख लेंगे कि फितराना कौन निकालता है। फितराने 3 चीजों में मैं बताऊं आपको, एक पनीर, एक किशमिश, एक खजूर, और चौथी चीज गंदम है। 1.25 सेर, एहतियातन 2 सेर कह देते हैं, 2 किलो कह देते हैं। लेकिन जो अफजल तरीन फितराना है, बेहतरीन, वो किशमिश है या उसके पैसे, बेहतरीन आला किस्म की किशमिश, कीड़ों वाली नहीं। खजूर, छुआरे या उसके पैसे, या पनीर या उसके पैसे, अब खुद बना लें। खजूर कितने की किलो है अच्छी? 200 रुपए। अच्छी खजूर 200 है। ₹400 कहते हैं, 350 कह रहे हैं, 200 वाली भी कह रहे हैं, वो तो 50 रुपए में भी मिल जाएगी। 400 रुपए, 350 की बेहतरीन खजूर। कुर्बानी के लिए बकरा कौन सा देते हैं? लूला, लंगड़ा, अंधा, काना, बहरा? 3 बताओ। तो मुझे उस खजूर का की कीमत बताएं जो लूली लंगड़ी खजूर ना। अब बताएं कौन सी? 400 वाली। 400 की आवाज अक्सर आ रही है। 400 की खजूर हो तो फिर फितराना कितना बनेगा खजूर का? जी 3.5। हाँ जी 1400, 1450 बनता है। फीकस। जूती लेने में सखी, मोबाइल लेने में सखी, खाना खाने में, पिज़्ज़े खाने में, बाहर की शॉपिंग, बाहर के खाने, होटल के, उसमें सखी। जब अल्लाह के लिए देने का वक्त आता है फिर खुद मुस्तहिक बन जाता है, और अल्लाह भी जज्बों के मुताबिक फिर दे देता है। कहता है ठीक है, नहीं देता, बीमारियों में, तकलीफों में, हादसों में, एक्सीडेंटों में, चीज के फेल होने में, फ्रिज के जल जाने में, मशीन के खराब होने में, किसी और चीज में तेरा लगवा दूंगा। अगर मुझे नहीं देगा, लगवाऊंगा सही, तेरी जेब में रहने नहीं दूंगा।
तेरी जेब में रहने नहीं दूंगा। हाँ, जो सफेद पोश आदमी है वो गंदम का दे दे, वो कितना बनता है जी? 80, 90, 100 गंदम का दे दे। लेकिन जिसको अल्लाह जल्ल शानहू ने अता फरमाया है और वो गंदम का दे सकता है, वो भी कबूल है, हो सकता है, पर अल्लाह के यहां सखी की बड़ी कीमत है और शैतान सखी से डरता है। तो दूसरी चीज मैंने अर्ज की है अय्याम 20। अय्याम 20 का बहुत ज्यादा दखल है खुशहालियों के साथ, मसाइल के अटके हुए निजाम के, उलझे हुए निजाम के साथ। और तीसरी और आखिरी चीज जो हमारी जिंदगी में हमारे रिस्क को बढ़ा जाएगी, वो रिस्क की कदरदानी है। ओहो, रिस्क की कदरदानी है। वो बिजली का रिस्क है, वो पानी का रिस्क है, वो रोटी का रिस्क है, वो गंदम का रिस्क है, वो दूध का रिस्क है, वो दही का रिस्क है, वो चीनी की शक्ल में है, वो कपड़े की शक्ल में है, वो जूती की शक्ल में है, और रिस्क किसी भी शक्ल में है। जो इसकी कदरदानी करेगा, रब रिस्क को कहते हैं बार बार जाओ उस घर में, फिर लौट के जा। और जो बेकदरी करता है, इंसान की बेकदरी करते आए, मेहमान की बेकदरी करने, वो फिर घर नहीं आता। कुत्ते की बेकदरी करने। मेरा एक बिल्ला था, वो अम्मा के कमरे में जाके बैठता था, फ्रिज पड़ी होती थी उसकी चौकी नीचे, ठंडी जगह, उसके से बैठता था। अम्मा फरमाते जा उसके पास जा, जिसकी बिल्ला है, चल जा यहां से चल। वो बिल्ला गया, फिर अम्मा के कमरे में फिर नहीं आया। मैं उठा के ले आता, भाग जाता था। हाँ, बेकदरी तो जानवर बर्दाश्त नहीं करता। मौला बख्श कहां थी? बहादुर शाह सफर का था। जब महसूस किया कि अब मेरे बादशाह और आ गए हैं, अंग्रेज आ गए हैं, और उन्होंने उस शाही हाथी की कोई कदर नहीं की, वो कदरदान था, उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसने कहा मेरे मालिक और गए हैं, जिसने मेरी कदर की थी, जिससे मेरा प्यार था, वो कहां गया मेरा मालिक? उसने खाना पीना छोड़ दिया। बादशाह तक इत्तला पहुंची, उस वक्त का अंग्रेज जो हुक्मरान था, उसने कहा शाही हाथी है। उसने कहा इसका ख्याल करो, हमसे गफलत हुई। उसने कहा वो उन आंखों को तलाश करता है जिन आंखों से उसकी आंखें मिली थी। उसके सामने मिठाई के टोकरे रख के सूंड से उठा के परे फेंक दिया। बादशाह ने इसका नीलाम कर दो, शाही हाथी है। भरी बाजार में उसकी बोली लगी, बेकदरी को बर्दाश्त न कर सका, हार्ट अटैक हुआ, वहीं मर गया। हाँ, प्यार एक होता है, मोहब्बत एक होती है, राहें एक होती हैं, दोस्तियां एक होती हैं। रोज नए यार, रोज नए प्यार, रोज नई दोस्तियां नहीं होती। मौला बख्श नाम उसका था हाथी का, और जिस दिन बादशाह ने सवारी करनी होती थी, उससे पहले उसका जो महावत था, खादिम था, उसको कह दिया जाता, वो अपने सूंड से अपने आप को साफ करता, झूमता, धोता, नहाता, और बादशाह को देखता और झूमता, और बादशाह के सामने अपनी सूंड सर झुका के खड़ा होता, और बादशाह से प्यार करता था, मोहब्बत करता था। बेकदरी की वजह से उसने कहा नहीं, जब मेरा यार ही नहीं है, वो नजरें ही खत्म हैं। इसी तरह इस पे हमदम से गए हमदम न मिला, हमदम से गए हमदम न मिला। इस पे हमदम घोड़ा था, उसका नाम हमदम था, वो भी ऐसे मर गया फिराक में और दर्द के अंदर मर गया। मेरे दोस्तों, रिस्क कदर मांगता है, नेमतें कदर मांगती है। जिस घर की नाली से चावल, आटा, रोटियां, चीजें, गोश्त, शोरबा जिस घर की नाली से जा रहा है, वो एक ऐलान करता हुआ जा रहा है, मौला इसने मेरी बेकदरी की है, गुर्बत, तंगदस्तियां, फाके इनके नसीब और मुकद्दर में डाल दे। बोरी अभी इतनी पड़ी होती थी, अभी नीचे बोरी में 10 किलो आटा, 15 किलो आटा, 12 किलो आटा, 8 किलो आटा पड़ा होता था। एक गदा रेडी वाला था, वो हमारे घर से भी गंदम की बोरी ले जाता था,
100 किलो वाली, और उनके घर से भी ले जाता। उसका काम यही था, बोरी उठाना, चक्की पे ले जाना और गंदम पिसवा के फिर घर आके, दयानतदार आदमी था, गधा रेडी वाला, अपनी मजदूरी ले जाता था। बोरी अभी नीचे पड़ी होती थी आटा, और कहती थी कि इसको उठा के ले जा, और इसमें नमी आ गई होगी, ये फेंक दे इसको उठा के। रात का दूध पड़ा है, कहना नहीं खराब हो गया, इसको फेंक दो। और अजीब बात है, किसी गरीब को दे दे ना, नाली में फेंकना है। आटा बचा हुआ है, उसको उठा के कूड़े में फेंकना है। तारीख लिखती रही, तारीख लिखती रही, तारीख लिखती रही, फैसले होते रहे, फैसले होते रहे, फैसले होते रहे। हमारे एक जानने वाले मेरे मामू के दोस्त भी थे, उनको, उसका नाम अताउल्लाह था, हाफिज अत्ती कहते थे। उनके घर के सामने करियाने की दुकान थी। वो छोटा सा पंखा लगा के ऐसे सो रहा था, तो किसी ने आके उसे जगाया, और 1 रुपया था, और कहने लगी, माई ये रुपए के मुझे पापे दे। उसने कहा, माँ सख्त गर्मी में गलियां सुनसान पड़ी हैं, क्या करेगी? कहा, बेटा 3 दिन से बुखार है, तकलीफ है, और मैंने घर का काम नहीं किया, मेरी बहू ने मुझे रोटी नहीं दी, भूख है, बुढ़ापा है, अब पैसे भी नहीं हैं, रुपए के पापे दे दे, पानी में भिगो के खा लूंगी, क्या करूं, इस बुढ़ापे में बर्दाश्त भूख नहीं होती है। उसने रिस्क की बेकदरी की, रिस्क ने उसा के आखिरी जिंदगी के अयाम फक्र और फाका में, गुर्बत और तंग दस्ती में। खुशहाली के 3 राज मैंने आपकी खिदमत में नियत अर्ज किया है। अय्याम 20 रातों को 3, 13, 14 और 15 हर माह, और रिस्क की बेकदरी ना करना और रिस्क की कदर करना। जो रिस्क की कदर करेगा